Sangmala Jule, Tene Diring, Le Apex Body Nang KDA, Tene Core Committee meeting ma Khakchan Jiksong, Kabena Dang Diringa Ladaksena Naslukseka, Tene Tosdur ma Gaspasong, Yang Itoga, Tene Yongchesene Tuskune Nanga, Matanga Kazuk, Lazgul Rikrulin, Tegunikang ma Tosdur ma Galasong, tene nyetup chikrang tene home ministry ne tene ngata condition khachik borkyak spera goma ne tangche sipya tenang ne tangpo bo tene ngaje home ministry diste tong zarak pinte ngaje tangpe ka tene judicial probe supreme court retired judge ne po teo ngaje non negotiable in zerte teo zerteot Teo man pa tene spera chi chanang gome talks nanga statehood nang 6 schedule ka spera chagos yang mangpo jik ngata jail la kaks tenok tena sonang chugang ngata inok kone ka NSA tangste Rajasthan la borte tenok tene changma unconditional tene put ko zerkane te bang tena distio tenok teo man pa tene ngata shrok nang dalkan nang tene ngata mangpo jiga goli pokte tenok tegun la government e compensation tangos te changma ngata tena distio tenok songpasana ngaja rewarak tene government e ngaje Chadon Borkan boika danda tene teka laklen choste tene spera tangches po dokspa guzukchen innang tene nyampo teba shungste marduga tene lasgur jigang tene KDA na apex niske yongches chane tuskune na shulches pang takchat song kabe nga tene jivet sulla silent march le Ladakh gangpe nga tene mi changma ika riban nakpo takstele teo ngata shrong on chugala yang teo man pa tene suang tene ngata spera sukpo ngan pa tuzuk mazera silent march le chupchate mi changma bingte tene 163 ngata dafa chakches le tebo thak chatin teo Ladakh gangpe na le tene lena chachezenok kargile na chachezenok block level kang chachezenok tebe jakpo ma guxpa ngaje chochezin kabo ngaje tene ngeja media gute ya social media gute mi sangmala mimans kun la ngaje lon thot chukchezin yang tewonang yampo tene phitokle mi sangme shro ngon chugala tene chucho tukne chucho gu chukpa sangme ot mituk chesle mundiga jukshes che juna tebe kane tewo ngon chukchezin tene Ladakh sena daksang tene mundik choksduk che juna tarung migun tene jigsnang stanches te chokse laskun choruk tenang nangle tene changme sang skomojik ngaje Ladakh se goba gunlale Mane target choste khona nakstante chang metpa ngatok thana yongzerte kherches sperang chang tiat zerte khertena chang mate pitok sukpa borches tizuk tontak metkane lazik choruk tene social media ka daksangata ta internet puti yot janu puti yotkan bongaja metkan soksik thonduk che juna social media ka chitong sik DLM gun jig dukle Teka chitong se government la tene demo masor kanjik dina tene tegun la tene harassment choruk tegun zoom se kherche se jigsnang duk mangpo jega thana yong zerduk tene teo changma demba Ladakh se nanga tene nasluk po demo yot kya gazanal demo thak chate metenok tene migun la sambena shante shro yotenok tene tenna changma ngon chukche se pya tene Ladakh pa jigste dukste man ngaje jiwa bora lai sangma chosten innang tene government ne
jiwa chuche sokthonga miruk taruang miguna nakstan chesete circabo khone borteduk te tsangmala tene gyapgal choala tene apex nang kering iskata chupchate dukche man jaskan bo diringma thakcha chenmosong yang igun daksenge jaskan spera tsangmeka tene yongche sane jakune nanga ngaje lazgul ladak gampena shulche zinle kasa बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानते हैं पिछले 6 साल से एपेक्स और केडीए 4 पॉइंट एजेंडे को लेके प्रोटेस्ट और एजिटेशन कर रही है और इसी सिलसिले में 24 सितंबर को जो कुछ हुआ वो लद्दाख की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और लद्दाख की तारीख में वो बहुत ही गमनाक और अफसोसनाक दिन है, जिस दिन हमारे 4 अजीज जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जन भर से ज्यादा को क्रिटिकली इंजर्ड किया गया। 70 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए और 70 से ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले बेगुनाह जवानों को अभी भी जेल की काल कोठरियों में बंद रखा गया। इन्हीं सारे हालात पे केडीए और एपेक्स की कोर कमेटी हमेशा 24 सितंबर के बाद बातचीत करते आ रही है और इसी बातचीत में एमएचए को ये क्लियरली हमने मैसेज दी है कि जो कुछ भी हुआ 24 सितंबर को, उसकी जब तक जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगी, जब तक डिटेनीज, सारे डिटेनीज इंक्लूडिंग लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सोनम वांगचुक जी को अनकंडीशनल रिलीज न किया जाए, और यही चीज़ें हमारे को चेयरमैन आज की इस मीटिंग में ऑनलाइन थे, कमर अली आखुन साहब, इन्होंने भी इन्हीं चीज़ों पे इंसिस्ट किया है कि सारे डिटेनीज को अनकंडीशनल रिलीज किया जाए और जो भी शहीद हुए हैं, जो भी जख्मी हुए हैं, जो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, इनको मान सम्मान कंपनसेशंस दी जाए। और 2 मेजर जो हमारे इश्यूज हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बातचीत नहीं होगी तब तक ये टॉक्स दोबारा रिज्यूम नहीं होगा। अभी तक इन्होंने एश्योर किया है हमें कि जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इन्होंने कहा कि आप लिख के दे दें, कंडीशंस भी हमने लिख के दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के सरबराही में ये जुडिशियल इंक्वायरी हो, वो भी हमने लिख के दे दी है। अभी हम वेट कर रहे हैं। लद्दाखी हमेशा पीसफुल रहे हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, ये सिंपल लोग हैं, ये देश के तईन अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसीलिए अभी भी हमारी, पहले भी थी, आज भी है, आइंदा भी हमारी जो भी एजिटेशंस होगा, प्रोटेस्ट होगी, वो पीसफुल ही होगा। हमारा मोटो ही पीसफुल है। हम गांधीवादी हैं, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के सारी चीजें हम कर रहे हैं। और जब तक ये चीजें, जो कंडीशंस मैंने आपको बता दी, ये फुलफिल नहीं होता है एमएचए की तरफ से, तो टॉक्स रिज्यूम होने का कोई भी चांस बिल्कुल नहीं है। हमें उम्मीद है, जिस तरह से इन्होंने केडीए और एपेक्स के साथ प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी हम जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज शुरू करेंगे, बाकी आपके कंपनसेशंस पे, बाकी डिटेनीज पे भी हम बात करेंगे, हमारे हीरो सोनम वांगचुक जी पे भी बात करेंगे। ये चीज़ें हो जाती है तो केडीए और एपेक्स बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, पहले से भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। साथ ही साथ हम सोच रहे थे कि 24 सितंबर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस,
हालात को समझ गई होगी, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि अभी भी इनकी तरफ से हरासमेंट, अभी भी धमकियां, अभी भी लोगों को उठा के ले जाना, पुलिस स्टेशंस में दिन भर रख लेना, चाहे वो हमारे गोबास हों, और अभी भी जो प्रेशर टैक्टिक्स है, स्पेशली हमें सुनने में आ रहा एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी प्रेशर टैक्टिक्स करके ये लोग जो भी एविडेंस है उन सारे एविडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर लगा के अपने हक में बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, गोबा और हमारे यूथ्स को डरा धमका के साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के लिए, एपेक्स और केडीए के लिए टॉलरेबल नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं पीसफुल कर रहे हैं, शांति के साथ हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके गोली से, इनकी मौत की धमकी से, काल कोठरियों की धमकी से लद्दाखी झुकने वाले हैं, लद्दाखी खामोश बैठने वाले हैं। ये कभी नहीं हो सकता और कभी भी लद्दाखी खामोश नहीं बैठेंगे, कभी भी लद्दाखी सहम नहीं जाएंगे, कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए ये एज्यूम करके न चले कि फिलहाल जो साइलेंट है ये आपको एक बड़ी तूफान का पेश खेमा है। तूफान उठने से पहले अब भी संभल जाए, ये हरासमेंट का सिलसिला बंद कर दे, गोबा को लाके धमकी देने का सिलसिला बंद कर दे, ऑफिशियल्स को प्रेशर लगाने का सिलसिला बंद कर दे, विटनेस को खत्म करने का सिलसिला बंद कर दे। और इन चीजों को बतलाने के लिए एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द ही हम यहाँ पे साइलेंट पीसफुल मार्च करेंगे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तारीख और दिन आपको बता दी जाएगी, और जिस दिन साइलेंट पीसफुल मार्च होगी सभी अपने बाजुओं पे काले पट्टियां बांध के निकलेंगे, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख अभी भी अंधेरे में है, लद्दाख में अभी भी दहशत है, अभी भी खौफ का एक माहौल बनाए रखा है। इस चीज को बतलाने के लिए सभी लद्दाखी, लेह के हों या करगिल के हों, लद्दाख के मटाइन, करगिल के मटाइन से लेकर छुशुल तक सारे लद्दाखी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे पीसफुल साइलेंट मार्च करेंगे, अपने डिमांड्स को लेकर मार्च करेंगे। और उसी शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरी लद्दाख ब्लैकआउट रहेगी, ये बतलाने के लिए कि जब तक लद्दाखियों को इंसाफ नहीं मिलती है, जब तक लद्दाखियों के हुकूक बहाल नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने जो हमें हुकूक दी है, राइट्स दी है, स्पेशली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल्स नहीं मिलती है, लद्दाखी खामोश बैठने वाले नहीं है। यही चीजें हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ। पूरी कोर कमेटी एपेक्स और केडीए के यहाँ पे है, और हमारे को चेयरमैन कमर अली खान साहब भी ऑनलाइन लेके इन्होंने भी इन चीज़ों को सपोर्ट की है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए से फाइनल रिक्वेस्ट ये है, इससे पहले कि ये जो खामोशी है ये तूफान की शक्ल ले ले, जो भी कंडीशंस एपेक्स और केडीए ने रखा है उस कंडीशंस को फुलफिल करके जुडिशियल इंक्वायरी, कंपनसेशंस, रिलीज ऑफ ऑल डिटेनीज इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी, और टॉक्स रिज्यूम करे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे। हमें उम्मीद है, हमने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। लद्दाखी हमेशा सख्त से सख्त क्लाइमेट में जिंदगी बसर कर रहे हैं, सख्त से सख्त हालात से लड़ना जानते हैं, और ये लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप सबों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये मैसेज बिल्कुल लाउड और क्लियर हो कि विद इन डेज पीसफुल साइलेंट मार्च होगी 2 घंटे का पूरी लद्दाख में,
और उसी शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट होगा। और इसके बाद आगे भी अगर यही सिलसिला रहा, क्या लाएअमल इख्तियार की जाएगी, वो एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी बैठ के आप सभी को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एपेक्स के एग्जीक्यूटिव और केडीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के जरिए कन्वे किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हालात सुधर जाएंगे। लद्दाखी फिर एक बार इज्जत के साथ, शराफत के साथ और विकार के साथ जी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है एमपी साहब, एक मिनट, अभी एमपी साहब आप बताएंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन। जैसा कि हमारे केडीए और एपेक्स के को चेयरमैन वर्जी साहब और करबली साहब ने बहुत ही तफसीलन एक तो आज का जो मीटिंग का मकसद और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों के सामने रखी। जिस तरह का हालात 24 तारीख को लेह में बनी, हम बेहद ही उस चीज़ के लिए हम सब दुखी भी है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हमारे यहाँ गुजरी है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या होम मिनिस्ट्री, ख़ासकर एलजी साहब, इनसे एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। 24 तारीख से पहले भी हमारे कई लीडरशिप ने और हमने भी बार बार मीडिया के थ्रू भी, नीचे में भी, हमने एक चीज़ पे ज़्यादा जोर ये लगाया था कि लद्दाख के अवाम बहुत ही पीसफुली, अमन के साथ जो है अपने मांगों को लेके पिछले कई सालों से आपको पता है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन साथ में कई बार मैंने ये कहा था कि बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ लद्दाख के अवाम, लद्दाख की लीडरशिप जो है वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा है, लेकिन इनके सब्र का जो इम्तिहान ना लिया जाए। मैंने उस वक़्त कहा था कि कहीं ये पीसफुली जो प्रोटेस्ट है वो ना चाहते हुए भी कहीं और किसी और ना ले जाए, शक्ल अख्तियार ना ले जाए, जिसका बहुत ही अफसोस हम सबको है 24 तारीख को हमको देखने को मिला। लेकिन अभी भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी लद्दाख में आवाम का जो परेशानियाँ हैं, जो आक्रोश है आज की डेट में, किसी से छुपी नहीं है, आप सबको पता है। अभी भी आप लोग समझ जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक तो जो केडी और एपेक्स ने जो डिमांड रखी है बातचीत शुरू करने के लिए, उसको जल्द से जल्द फौरी तौर पे उन पे अमल करके बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। और इस बार मेरी ये अपील रहेगी कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है ये बातचीत शुरू हो और प्योरली जो हमारे दो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बातचीत शुरू हो। और दूसरी, ख़ासकर जिस तरीके का एक माहौल यहाँ पे ख़ासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के आसपास बनाया जा रहा है, लोगों को हरेसमेंट करके, लोगों को सता के, मेरी मुदबाना गुजारिश है कि जो देश के बाकी जो हिस्सों में जो टैक्टिक चलते हैं उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे मत कीजिए। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम कभी नहीं चाहता है कि हमारे जो लद्दाख के जो इलाका है इसका जो अमन फिजा है इसमें खलल पैदा हो। लेकिन इस तरह का चीज़ें करके आप लोग खुद जो इन चीज़ों को दावत देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मेरा दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और होम मिनिस्ट्री से भी, ये जो टेक्टिक्स जो आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, ख़ासकर हमारे बुबा मेंबर्स को, बाकी यूथ को हरेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे यूथ को पकड़ दकड़ करके अंदर कर रहा है। इस तरह के हालात, इस तरह की चीज़ों से लद्दाख का हालात सुधर नहीं जाएगा। लद्दाख का जो आप लोग, मेरा अपना एक समझ है कि आप लोग इस तरह का टेक्टिक करके लद्दाख की जो आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का भूल है। इससे फिर और ज़्यादा जो 24 तारीख को हुआ, ये मेरी तरफ से एक ये है, कहीं ये और जो है लद्दाख उस और मत जाए। तो ये मेरी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जो भी डिमांड यहाँ पे रखी है, अभी करबले साहब ने कहा, हमारे को चेयरमैन कमर साहब भी हमसे जुड़े हुए थे वर्चुअली, उनका भी यही है कि भाई जो डिटेनीस है, इंक्लूडिंग हमारे जो सोनम वांगचुक जी,
उनको बिना शर्त जो है उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। और ख़ासकर जिन 4 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, एक तो हम सब उनकी फैमिलीज़ के पीछे खड़े हैं और सदियों तक जनरेशन टू जनरेशन जो है लद्दाख की आवाम, लद्दाख के जो यूथ जनरेशन जो है इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, इनकी कुर्बानियों को। उनको जो है कंपनसेशन जिस तरह कबीलेश साहब और दोर्जे साहब ने कहा है उनको मिलना चाहिए, और ख़ासकर कंपनसेशन भी से भी ज़्यादा उनको इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ मिलना चाहिए। जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए जो जुडिशल इंक्वायरी करके इन 4 लोगों को जिस तरह का कत्ल किया गया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो बाकी डिमांड्स हैं उनको जल्दी पूरा करके बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू होना चाहिए। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बताइए मलिक साहब। सर एमपी साहब, हम सबको मालूम है 24 तारीख को हुआ क्या हुआ, उसके बाद अभी लद्दाख के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के बीच में आप ही हुई थी, तो उसको आप कहाँ ये इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया, क्योंकि खासकर जो डीजीपी का स्टेटमेंट देखा होगा आपने, एलजी का स्टेटमेंट देखा, उस पर सभी लोग ऐतराज जता रहे हैं। बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे इवन होम के लोगों से दोर्जे साहब के टच में भी है, मेरे टच में भी है। जिस तरह का स्टेटमेंट एलजी साहब डीजीपी साहब का आया था, उसके बाद से हर प्लेटफॉर्म पे हमने कंडेम किया है, और हमने सिरे से उस चीज़ को, ख़ासकर जिस तरीके से लद्दाख के आवाम को एक एंटी नेशनल टैक्स देने की, इवन मीडिया तक को हमने कंडेम किया है। जिस तरीके से कुछ मीडिया के लोगों ने भी जो एंटी नेशनल एक टैक्स लगाने की कोशिश किया, उस चीज़ को हर प्लेटफॉर्म पे, होम मिनिस्ट्री हो चाहे होम वाले हो, हर किसी के सामने जो है हमने बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है हमने कंडेम उनके सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन कासिंगले से है। तो हमारा डिमांड रहा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। रिसेंटली कुछ मीडिया न्यूज़पेपर में हमने ये भी देखा कि हमें फिलहाल 6 शेड्यूल यूटी विद लेजिस्लेचर देने से भी चल जाएगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था। क्या आपने कहा था या ये रिपोर्ट झूठा है? बिल्कुल झूठा है। देखिए, टेबल पर बैठे बगैर हम किसी को नीचे कैसे आ सकते हैं हमारे डिमांड से? अभी तो ये डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो हम अपने डिमांड से पीछे कैसे हट सकते हैं? ये बिल्कुल गलत एक वो मैंने देखा था, प्रेस में आया है, बिल्कुल मैंने कभी नहीं बोला ये। सर, जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड जो रखा गया उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग रिटायर्ड जज जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए हमें, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सिटिंग। उसके लिए रूलिंग मान गई है सर? अब हमने इनको दे दिया है लिख के। इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि लिख के दे दें, हमने लिख के दे दिया। हमारी तरफ से जो भी इन्होंने फॉर्मेलिटीज कहा वो सब इनका कहना यह है कि शुरू में इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ढूंढ रहे हैं, फिर बाद में कहा कि हमें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मिल नहीं रहा है, तो हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराने का। तो उसको तो हमने बिल्कुल रिजेक्ट किया है और हमने लिख के दिया है कि ये हमें मंजूर नहीं है। एनी क्वेश्चन? एपेक्स का चेयरमैन का थुसन को पहले वापस लाने का बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, उसके बाद वो वापस भी आई है, बट काफी प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है वो थोड़ा बैक स्टेप है। क्या रीजन रहा है सर? क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एपेक्स चेयरमैन नहीं, आज तो वो ले में है नहीं तो उन्होंने आना था। ये जो भी है उनके नॉलेज में है। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने मीटिंग किया उनके नॉलेज में है, और जो भी हमने जो लेटर लिखा वो भी उनके पूरा सब कुछ पता है उनको। और जो बातचीत हो रहा है होम मिनिस्ट्री और हमारे बीच में, वो तुप्तान साहब के थ्रू हुआ है। सर, आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है, जो सोशल मीडिया पे लद्दाख के बाहर सोनम वांगचुक को रिहा करने के लिए काफी मुहिम चलाया जा रहा है। क्या अपेक्स और केडीए की तरफ से भी कैसा कुछ करने जा रहे हैं सर? देखिए, एक तो ये सोनम वांगचुक को रिहा करने की जो बात है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सब जुडिस है। हमारा ये कहना ये है कि उनको रिलीज़ करना चाहिए, और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये हम शुरू से कहते आ रहा है।
लेकिन हमने टॉक्स के लिए कंडीशन में जानबूझ के इसलिए नहीं रखा है। उनका रिलीज तो हमने कहा है रिलीज होना चाहिए, लेकिन वो कंडीशनल इसलिए नहीं है, फिर हमारा डिमांड पीछे छूट जाता है। सोनम वांगचुक का रिलीज जो है वो नंबर 1 पर आ जाता है। तो इसलिए सोनम वांगचुक ने खुद हमें संदेशा भेजा है कि उनके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो जेल में रहने के लिए तैयार है। और वो पहले भी कह रहे थे कि वो अंदर बैठ के हमारे मूवमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम तो कहते हैं उनका डिटेंशन बिल्कुल गलत है, वो रिलीज़ होना चाहिए, लेकिन हम कंडीशन इसलिए नहीं रख रहे हैं टॉक्स के लिए, क्योंकि फिर वो सोनम वांगचुक का रिलीज़ हमारा नंबर 1 होकर रह जाता। नंबर 1 तो हमारा डिमांड से, डिमांड को फुलफिल होना हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। सर, आपने सर्दियों में अक्सर में देखा होगा, ये केडीए का मेंबर हो या एपेक्स का मेंबर हो, कहीं इधर उधर चला जाता है, तो जो लद्दाख मूवमेंट अभी तक का सर्दियों में थोड़ा कम चांस रहता है। तो इस बार क्या अलग होगा, क्योंकि 24 तारीख की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो उसके बाद? ऐसा कोई चीज इसमें नहीं है कि आप सोचेंगे अगर कोई हमारी मेंबर्स केडीए का या एपेक्स का आउट ऑफ यूटी चले जाते हैं तो आपके मूवमेंट्स में, आपके यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है उसमें कहीं पे किसी जगह डिले हो जाती है, या वो जैसे हम चाहते हैं ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। और इसीलिए अभी जो हमने कहा कि 2 घंटे की जो साइलेंट एक प्रोटेस्ट है, वो इसीलिए हम बता रहे हैं, उसमें सारी डिमांड्स है, आपके जो मेन इश्यूज है, और इश्यूज को कंसिडर करने के लिए जो कंडीशंस है, जुडिशियल इंक्वायरी, कंपनसेशन, डिटेनीज, रिलीज ऑफ डिटेनीज अनकंडीशनल, इंक्लूडिंग अवर हीरो सोनम वांगचुक, ये सारी चीजें उसी में है। तो उसी के लिए ये कैलेंडर आपको दी गई है, जिसमें दिन को 2 घंटे की साइलेंट प्रोटेस्ट होगा और रात को पूरा लद्दाख ब्लैकआउट रहेगी। इसके बाद आगे के जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो टाइम टू टाइम आपको कन्वे किया जाएगा। इसमें एक मिनट, इसमें ऐसा है कि आज तक जो हमने खासकर ले डिस्ट्रिक्ट में जो भी मूवमेंट चलाया है वो विंटर में हमने तेज किया है, क्योंकि विंटर में लोगों को ज़्यादा काम नहीं होता है। जो गांव में लोग हैं उनका खेती बाड़ी का काम कुछ भी नहीं होता है, और टूरिज़्म का भी यहाँ काम कोई ख़ास नहीं होता है। तो हमारा जो ज़्यादा एजिटेशन होगा वो ड्यूरिंग विंटर ज़्यादा होगा। और हम इसको हमने जो साइलेंट प्रोटेस्ट है वो एक है, बहुत सारे हम स्टेप्स लेते जाएंगे, उनमें से ये एक है। और हमारा ये सोच है कि विंटर आते आते अगर हालात ठीक नहीं होता है, हमारे टॉक्स फेल हो जाते हैं, तो हम विंटर में इसको तेज करेंगे। सर, जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 14 को इससे पहले जो हेयरिंग था उसमें कि एक तो सोनम वांगचुक को किस बेस पे पकड़ा है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहते हैं। सेकेंडली, ये केस जो है पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं आया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आया? तो ये क्या एक कमजोर केस लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, देखिए ये केस केडीए और एपेक्स नहीं लड़ रहा है ना, आपको पता है, ये उनके वाइफ ने केस किया है। तो ये क्वेश्चन आपको उनके वाइफ से करना चाहिए ना, उनके केस से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, वो तो उनको ज़्यादा पता होगा ना, उनके वकील को ज़्यादा पता होगा, तो वो तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। और इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, लीगली कहीं पे भी कोई कमजोरियां बिल्कुल नहीं रखेंगे एपेक्स और केडीए की तरफ से। अब ये कैसे प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट कर लेते हैं, वो हमारे लीगल जो ल्यूमिनरीज हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, अभी हमारे मुस्तफ़ा हाजी हैं, और वहाँ पे और भी दूसरे वकील से, वो सारी चीज़ें वो लीगली इन चीज़ को वो अडॉप्ट करेंगे और इसी सब प्रोसीजर्स को आगे लेके चलेंगे। तो इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी। साइलेंट मार्च और जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बंद करवाना, वो डेट कब अनाउंस होगा, और किस तरह से एपेक्स और केडीए इंश्योर करेंगे कि सारे जितने भी रीजन पे लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें इसके? इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए हमने गैप रखा, मगर डेट हम जल्दी बता देंगे, और बहुत इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगा, ये जल्दी करेंगे। ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी आप लोगों को कन्वे किया जाएगा, पूरी एपेक्स के मेंबरों के जरिए, केडीए के मेंबरों के जरिए और मीडिया के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। 163 अभी भी इम्पोज है ले में,
तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग, अगर कोई कैंडल लाइट मार्च निकलना चाहता है या कोई पीसफुल रैली, वो भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से फिर यही जो बहुत सारे मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो सारे लद्दाख के बारे में बहुत सारे अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। और हमारे लिए सारे व्हाट्सएप भी बंद है, फिर रैली वैली भी निकाला नहीं जा सकता। उस पर क्या कहेंगे? अभी टाइम नहीं है क्या आप इसको हटाने का? देखिए, एक जो भी हम करेंगे ना, वो हमें पता है वो 163 का वायलेशन होगा, तो हम तैयार हैं। अगर इसका वायलेशन होता है, हमारे ऊपर दफा लगता है, हमें जेल में ले जाते हैं, वो सब पता है हमें। तो इसमें ज़्यादा ये एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। ये लद्दाखियों के जो सेंटिमेंट्स है, उस सेंटिमेंट्स को, उस एहसास को हम पूरी तरह से फील करते हैं। इनके अंदर जो एंगर है, जो गुस्सा है, उससे भी हम फील करते हैं। इसीलिए हमने एक मैसेज देने के लिए 2 घंटे की साइलेंट प्रोटेस्ट रखी है, ताकि एक मैसेज जाए कि साइलेंट है, प्रोटेस्ट है, पीसफुल है। और रात को 3 घंटे का ब्लैकआउट है, ये मैसेज देने के लिए। और उस सिलसिले में जो कुछ भी हम पे लगती है, सारी चीजें फेस करने के लिए हम तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।